Last function today we are going to discuss, that is the fourth function, exchange mechanism. Who will define the term exchange mechanism? आपने पेपर के लिए कभी चैप्टर तैयार किया होगा. What is exchange mechanism? Yes, there is buyer and seller relationship. Buyer is ready to buy and the seller is ready to sell, but there should not be compulsion for any of the party. The exchange mechanism should be free. That should be independent. Nobody should force the other party to buy or sell. Means बंदूक की नोक पे सेलर ये नहीं बोलेगा कि तू मेरा सामान खरीद, और बायर ये नहीं बोलेगा जबरदस्ती से तू मेरे कोई सामान बेच. So there should be freedom to take the decision for both the parties. अगर बायर खरीदना चाहता है तो उसका अपना डिसीजन है, सेलर ने उसे फोर्स नहीं किया. In order to complete this exchange mechanism, few conditions should be satisfied. One, for this exchange process, at least two parties should be there. Can seller be able to sell the goods to him only? No. So there should be involvement of two or more parties. Each party should be capable of offering something of value. दोनों पार्टीज के पास कुछ ना कुछ ऑफर करने को है दूसरी पार्टी को. सेलर के पास सामान है बेचने को, तो बायर के पास है पेमेंट करने को. ठीक है, बार्टर सिस्टम आजकल नहीं चलता. मनी वर्थ में वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा, एंड सेलर विल बी हैंडिंग ओवर द पोजेशन एंड ओनरशिप टू द बायर. ईच पार्टी, बार्टर सिस्टम नहीं है आजकल में, मनी करेंसी की फॉर्म में. Each party should have the ability to communicate and deliver the product or service. No exchange can take place if buyers and sellers are not able to communicate with each other. Means communication process should be completed. दोनों का आपस में बातचीत करना बहुत जरूरी है, तभी exchange finalize होगा. Each party should have freedom to accept or reject. वो मैं पहले ही बात करती हूँ, बंदूक की नोक पे कोई अपनी बात नहीं मनवाएगा. दोनों पार्टीज के पास क्या है, फ्रीडम है एक्सेप्ट और रिजेक्शन की. The party should be willing to enter into the transaction with each other. दोनों अपनी मर्जी से दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करते हैं. Then what can be marketed? What can be marketed? Only goods and services. I tell you, a person can also be marketed, an idea can also be marketed, an event can also be marketed. So let's do the difference between these 5 or 6 terms. Physical products. Example दो physical products की. Physical products. Smart television, smartphone, smart watch. ठीक है? Anything which has the physical existence that can be exchanged, that can be marketed. Services can also be marketed. Banking services, बैंक की एग्जाम एडवर्टीजमेंट आती है. देन इंश्योरेंस सर्विसेज कैन ऑल्सो बी मार्केटेड, उसकी एग्जाम्पल दे सकते हो आप. आइडियाज कैन ऑल्सो बी मार्केटेड. पोलियो वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन, सो दीज आइडियाज आर बीइंग मार्केटेड. पर्सन्स, यस, ड्यूरिंग इलेक्शन हम पार्टी पे खड़े बंदे की एडवर्टाइजमेंट करते हैं. So persons can be marketed for votes, for elections. Place can also be marketed. That's why I told you that need not to sit together. Together means parallel to each other. Yes, customized experience as dinner with a cricketer, lunch with a celebrity. If you win this ticket, yeah, if you win this prize, so you will have an experience of having lunch and dinner with celebrities. Properties के बारे में सबको पता है, that are being marketed. ठीक है, कोई प्लॉट सेल के लिए है, कोई प्रॉपर्टी सेल के लिए है. Then event, स्पोर्ट्स इवेंट, IPL की एड आ रही है, T20 की एड आ रही है, डिफरेंट मैच की सीरीज चल रही है, तो दैट इज व्हाट इवेंट्स कैन बी मार्केटेड. इंफॉर्मेशन, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जब कोर्सेज के एडमिशन के बारे में एड देते हैं,
तो उस केस में हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप की भी मार्केटिंग करती हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की एड में वी विल स्पेंड ईच रुपी फ्रॉम योर परचेज फॉर द गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, मतलब हमारे कंपनी का जो कोई भी आप सामान खरीदेंगे, हर परचेज के पीछे 1 रुपया हम गर्ल एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेंगे। इट मीन्स कि दे आर promoting themselves only. In that case, organizations are being promoted. Who is a marketer? That also we have discussed. In most of the cases, seller is the marketer. It is only in emergency situation or exceptional situation that the buyer can also be the marketer. When he is an active participant in exchange mechanism. When he is an active participant, when the buyer is an active participant in exchange mechanism, किसी सामान की शॉर्टेज चल रही है, बायर को सामान इमरजेंसी में चाहिए, वो सेलर को फोर्स करेगा तो मेरे से डबल रेट ले ले, लेकिन मेरे को वो सामान चाहिए। मैं आमतौर पे एग्जांपल यही कोट करती हूँ, रात को 12-1 बजे कोई लाइफ सेविंग ड्रग या इंजेक्शन चाहिए, तब केमिस्ट की और फार्मेसी की शॉप बंद है, आपके पास उसका टेलीफोन नंबर है, आप उसे फोन करके बुलाते हैं, आप उसे कहते हैं मैं डबल रेट देने को भी तैयार हूं, मेरा फैमिली मेंबर की जान बच जाएगी अगर आप मेरे को ये वाला इंजेक्शन प्रोवाइड कर दोगे। इन दैट केस हु इज फोर्सिंग whom? Who is forcing whom? Buyer is forcing seller. So in that case, buyer becomes marketer, but in most of the cases, seller is always the marketer. ठीक है? Let's do the difference between marketing and selling. Which is the wider term? Selling is a part of it. Okay, I will speak the heading and you will explain it. Part of the process versus wider term. अभी बता दिया. Selling is a part of marketing and marketing is a wider term. अगला heading है transfer of title versus satisfying customer needs. Transfer of title selling में होगा. Title का मतलब ownership. Ownership goes from seller to buyer. And marketing का main objective क्या है? To satisfy the consumer needs. क्योंकि हम सामान बनाते ही वही हैं जो हमारे कस्टमर्स को चाहिए। अगला हेडिंग है प्रॉफिट थ्रू सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग में प्रॉफिट इज ऑलवेज बीइंग इंक्रीज्ड बाय सेटिस्फाइंग द मैक्सिमम satisfaction to the consumer, and in selling, sale is always being increased या profit will always be increased by maximizing the sale. ठीक है, पर्पस और ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला हेडिंग है स्टार्ट एंड एंड ऑफ एक्टिविटीज। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एक्टिविटीज, मैं लाइन पढ़ूंगी, लिसन टू मी केयरफुली। सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन डेवलप्ड। जब तक सामान बनके तैयार नहीं होगा सेलिंग एक्टिविटी नहीं स्टार्ट होती। मार्केटिंग एक्टिविटी कब स्टार्ट हो जाती है? इवन बिफोर प्रोडक्शन। ठीक है, तो लेट मी कंप्लीट द लाइन। सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन डेवलप्ड व्हाइल द मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट मच बिफोर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मार्केटिंग इवन प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इन इट वी इंक्लूड द प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज व्हिच वी कॉल मार्केट रिसर्च। डिफरेंस इन एम्फेसिस, लाइन सुनना जरा। The emphasis is on bending the customer according to product. ये किसका मोटो है? Bending the customer according to the product. Selling. जो अवेलेबल है हम कस्टमर को कन्विंस करते हैं तो खरीद ले। मार्केटिंग का एम्फेसिस किस पे होगा? An attempt is to develop the product and other strategies as per customer needs. जो उन्हें चाहिए हम वही बनाते हैं। तो मार्केटिंग में एम्फेसिस किसके ऊपर है? टू डेवलप द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर नीड। सेलिंग का एम्फेसिस किस पे है? टू बेंड द कस्टमर्स एज पर द अवेलेबल प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर को मना लेना, उसे अपनी बातों में उलझा लेना और उन्हें कन्विंस कर लेना कि आप वो खरीद लो जो हमारे पास है। डिफरेंस इन द स्ट्रेटजीज। सेलिंग में सेल को कैसे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल ठीक है, aggressive sale promotional technique, buy one get one free, लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करके
हम सेलिंग के थ्रू अपने प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे व्हेन वी विल बी स्पेंडिंग अ लॉट और ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, ऑन प्रमोशन। मार्केटिंग में एफर्ट किस पे होगा? इंटीग्रेटेड मार्केट एफर्ट्स with regard to product, all the 4 P's, with regard to product, price, promotion and even physical distribution. We will decide how we will be reaching to the consumer. मैं कौन सा लेवल ऑफ चैनल अडॉप्ट करूं ताकि आसानी से मेरा सामान मेरे कस्टमर्स तक पहुंच जाए. So that is what we call integrated marketing approach. Integrated marketing approach includes all the 4 P's. Name them. All the 4 P's. पहले product, then price, place और physical distribution दोनों सेम है. Then we have promotion. Yes, place and physical distribution मैंने बोला दोनों सेम है. Now come to the next topic, marketing strategies. Let's discuss serial order में. Production philosophy or production concept. Who will define? Production concept. Here the focus is on quantity, not on quality. ये वो इरा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोली गई और धड़ाधड़ प्रोडक्शन की गई मशीनों की हेल्प से. वहां पे कभी भी मेरे मैन्युफैक्चरर ने बॉदर नहीं किया कि क्वालिटी अच्छी बन रही है कि नहीं. ठीक है. So that was a time when huge production has been introduced to the market and that was an era of industrial revolution. हमारी इंडिपेंडेंस की इमीडिएटली बाद which the time we call 1950s onward. ठीक है. क्या आज के जमाने में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल है? टाइम चेंज हुआ, हमारे कस्टमर अवेयर हुए, उनको लगा कि हमें इतना सस्ता भी सामान नहीं चाहिए जो घटिया किस्म का है, हमें अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए, हम ज्यादा रेट भी पे करने को तैयार हैं. तो हमारे सेलर्स ने इस बात को रियलाइज किया कि वी शुड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. So in this concept, the quality is being stressed. कस्टमर की जरूरत को देखते हुए अच्छी क्वालिटी का सामान बनना शुरू हुआ. अब क्वांटिटी के ऊपर एम्फोसिस नहीं किया गया, क्वालिटी पे एम्फोसिस किया गया. अगला तो बता ही दिया सेलिंग के डिफरेंस में. सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? यस, एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पे स्पेंड करके हम सेल को बढ़ाएंगे. जब सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी बढ़ेगा. बेंडिंग द कस्टमर एज पर द अवेलेबल प्रोडक्ट. ठीक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट. और टाइम चेंज हुआ, कस्टमर और ज्यादा अवेयर हुआ, एजुकेटेड हुआ, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के ऊपर स्ट्रेस दिया गया. दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज टू बी एम्फसाइज्ड. हर हालत में मैंने अपने कस्टमर को क्या करना है? सेटिस्फाई. कई बार आपने कहीं शॉप्स पे या कुछ सर्विस सेंटर्स पे ये लिखा देखा होगा, इफ यू आर सेटिस्फाइड टेल अदर्स, इफ नॉट टेल अस. व्हाट इट मींस? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है. इफ यू आर सेटिस्फाइड टेल अदर्स अबाउट अस, है ना. अगर नहीं है सेटिस्फाइड तो हमें बताओ, हम अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आएंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. तो आज के जमाने में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज देयर. और टाइम चेंज हुआ, हमारी गवर्नमेंट को लगा कि ये जो बिजनेस हाउसेस हैं ये सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, ये आसपास की सराउंडिंग्स का केयर नहीं कर रहे, एनवायरमेंट पॉल्यूट कर रहे हैं. और टाइम चेंज हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी, इको फ्रेंडली पैकिंग के ऊपर स्ट्रेस देना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रीज को रेजिडेंशियल एरिया में खोलने की परमिशन नहीं दी गई. तो हमारा कॉन्सेप्ट आया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पे कस्टमर्स की नीड तो माइंड में रखनी है, सोशल वेलफेयर भी माइंड में रखना है. So this is what we call societal marketing concept. Gathering and analyzing the market information. And who are going to be our customers? Prospective customers. मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. फर्स्ट फंक्शन इज गैदरिंग कहां से क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है? मार्केट में सर्वे करना है, रिसर्च करनी है. हु आर गोइंग टू बी आवर कस्टमर्स,
who are going to be our competitor. सीधा ब्लाइंडली सामान नहीं बनाना शुरू कर देना फर्स्ट स्टेप में, पहले देखना है मार्केट में क्या बिकेगा. जिस चीज के ऑलरेडी इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है, आप कभी भी वो चीज नहीं बनाएंगे. ठीक है, अगर उस चीज के कॉम्पिटिटर कम है और वहां पे कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, उस एरिया में वो शॉप है ही नहीं, तो आप उस चीज को बनाने के बारे में या बेचने के बारे में सोचेंगे. इट मीन्स कि यू जस्ट हैव टू सर्च योर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. अगर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और थ्रेट्स कम है, तो आप उस प्रोडक्ट को बनाने के बारे में सोचेंगे. नेक्स्ट इज मार्केट प्लानिंग. सेकेंड फंक्शन इज मार्केट प्लानिंग. व्हाट विल यू डू हियर? आपने ये डिसाइड कर लिया, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, नाउ यू हैव टू प्लान कि मैं उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू करूं. तो मार्केट प्लानिंग में क्या है? एरिया ऑफ वर्क ऑफ द मार्केटर इज टू डेवलप द मार्केटिंग प्लान सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव. अब आप प्लानिंग करोगे लाइक आई वांट टू मैन्युफैक्चर स्मार्ट टीवीज और मेरा मार्केट शेयर कितना हो, क्योंकि प्लानिंग में हमेशा ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है भाई. तो मार्केटिंग प्लानिंग में यू विल बी सेटिंग योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू वांट टू अचीव. आप कितना मार्केट शेयर अटेन करना चाहते हो जो प्रोडक्ट आप बनाने के बारे में सोच रहे हो, एज पर द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. देन थर्ड, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. इट इज एन इंजीनियरिंग स्टेप भाई, जहां पे आप इंजीनियर्स की टीम के साथ बैठोगे और अपने प्रोडक्ट का डिजाइन फाइनलाइज करोगे, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर, उसका पहले एक नैनो मॉडल तैयार करोगे, एंड देन यू विल बी फाइनलाइजिंग दैट प्रोडक्ट. दिस शुड बी द डिजाइन ऑफ माय प्रोडक्ट. साइज क्या होगा, कलर स्कीम क्या होगी, अगर मैं स्मार्ट टीवी की बात करूं तो वो कितना स्लीक होगा, क्या उसकी शेप होगी, क्या उसका वेट होगा, एवरीथिंग यू विल डिसाइड विद द टीम्स ऑफ इंजीनियर, एंड देन अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट डेवलपिंग इट. दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. हु विल टेल? ये हमारे टेलर की भी एक टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन, और ग्रेडिंग इज समथिंग डिफरेंट हियर in this chapter. Who will tell its meaning? Standardization. Like. No. Specific definition. To bring the uniformity in the product. लक्स का साबुन मैं लुधियाना से खरीदूं, गुरुग्राम से खरीदूं, जलंधर से खरीदूं, it is going to be same because it is standardized product. ठीक है? Is it clear? मतलब यूनिफॉर्मिटी इन साइज, कलर एंड इवन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज व्हाट? स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है? और ग्रेडिंग क्या है? एज पर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू जस्ट असाइन देम रैंक्स और ग्रेड्स. बासमती का पूरा पीस, ठीक है, दैट इज नंबर 1 क्वालिटी. कैश्यू नट्स, अगर फुल कैश्यू नट्स है तो वो नंबर 1 है, अगर हाफ है तो वो नंबर 2 है. इस तरह से ग्रेडिंग देंगे. अगर वो क्रश फॉर्म में है तो नंबर 3 या नंबर 4 है. ड्राई फ्रूट्स के केस में, राइस के केस में, इवन फ्रूट्स के केस में भी ग्रेडिंग होती है एज पर द क्वालिटी लेवल्स. दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रेडिंग. आपने भी अपने प्रोडक्ट की ऐसे ग्रेडिंग करनी है. दोनों का मीनिंग सुनो. दिस लाइन ही कैन पिक एंड ही कैन आस्क यू नेम इट. इट रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग द गुड्स ऑफ प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशंस. जैसा डिसाइड किया गया है वैसा ही बनाना है. ये नहीं है कि एक मिस्टर ए सामान बना रहा है तो सोप का वेट उसने 70 ग्राम रखा, मिस्टर बी ने मैन्युफैक्चर किया तो उसने 75 ग्राम रख दिया. नो. मिस्टर सी ने बनाया तो उसने 60 ग्राम उसका वेट रख दिया. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस. जैसी स्पेसिफिकेशंस आपको दी गई हैं, जैसा आपको बोला गया है, आपने उसी सेम साइज का सामान बनाना है, सेम वेट का सामान बनाना है टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी. और जब ऐसा होता है ना तो बायर्स को कंफ्यूजन भी नहीं रहती. बायर्स को लगता है मैं कहीं से भी वो सामान ले लूं, स्टैंडर्डाइज्ड है भाई, अच्छी कंपनी का सामान है, अच्छी क्वालिटी का होगा, इसमें कोई हेरफेर होना ही नहीं, मैं कहीं से भी सामान खरीद लूं और सेम रेट पे मेरे को मिले. दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैंडर्डाइजेशन. ग्रेडिंग की डेफिनेशन उसने बड़ी अच्छी दी है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. हाउ टू फ्रेम दैट ग्रुप्स? आप लोगों की भी क्लासिफिकेशन हुई है एज पर द subjects undertaken by you. One section is of medical and other is of non-medical and third one is of commerce. This is what classification as per the subject chosen by you. तो इसी तरह से हमारे प्रोडक्ट्स की भी क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी एंड साइज. मैंने भी तो यही बताया, कैश्यू नट्स की क्वालिटी एंड साइज,
ठीक है, फ्रूट्स के केस में एप्पल ए क्वालिटी का है, बी क्वालिटी का है। ए क्वालिटी का तो बोलते हैं तो ये न्यूजीलैंड से आया है, यूएसए का है और ये इंडियन है, ठीक है, ए और बी, एंड अकॉर्डिंगली दे फिक्स द रेट। यू आर गेटिंग मी? इसी तरह से नट्स के केस में भी इंपोर्टेड नट्स हो सकते हैं, इंडियन नट्स हो सकते हैं। तो क्वालिटी वाइज, साइज वाइज जब आप अपने प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन कर देते हो तो उसे ग्रेडिंग कहते हैं। दो टॉपिक्स है अगले, दोनों को अलग अलग करेंगे और डिटेल में करेंगे। वन इज पैकिंग एंड अदर इज लेबलिंग। दो वर्ड मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आप मेरे को बताना क्या दोनों वर्ड सेम है कि अलग अलग है। नो बोलो जी। वन वर्ड इज पैकेज, अनदर वर्ड इज पैकेजिंग। ये पैकेज है, दिस इज पैकेज। रिस्टोरिंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, वेट टिश्यू पैकेज है। पैकेजिंग क्या है? बिल्कुल ठीक है, इस प्रोडक्ट के पैकेज को डिसाइड करने वाला जो प्रोसेस था वो पैकेजिंग था। बार बार कहती हूं, किसी भी वर्ड के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो प्रोसेस बनता है। एंड हाउ द पैकेजेस आर टू बी डिसाइडेड, हैड इट बीन इन लिक्विड फॉर्म तो ऐसे पैकेट में रखते, फिर तो लीकेज की पॉसिबिलिटी होती, वो बॉटल में या जार में रहता, ठीक है, बिकॉज इट इज सॉलिड इन नेचर, दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू पैक इट इन दिस थिंग, ठीक है। अब जैम है तो ट्रेवलिंग पैकेट है तो उसे ट्यूब की फॉर्म में भी लेके आ रहे हैं, उसके सैशे भी बना रहे हैं। इसी तरह से सॉसेस के केस में उसके सैशे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ये नहीं है कि ब्लाइंडली यू विल बी डिसाइडिंग कि लिक्विड है तो मैं कार्डबोर्ड की पैकिंग में उसे डाल सकती हूँ। नो, ईदर इट कैन बी इन द ग्लास जार और इन द प्लास्टिक जार। सो इट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट which will be deciding the container or the wrapper of the packaging, right? So we will be picking this topic. What is the meaning of package only? Outer wrapper of something which preserve the basic characteristic of a product, like candy का outer wrapper, chocolate का outer wrapper। अगर वो रेपर ना होता तो वो वैसे ही मॉइस्चर के कारण सारी मेल्ट हो जाती, चाहे वो कैंडी है चाहे वो चॉकलेट है। सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दैट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, आउटर रेपर इज नेसेसरी। सिमिलरली सॉक्स पेयर इन ट्रांसपेरेंट पैकेट, एक तो बाइंग के टाइम पे ट्रांसपेरेंट है तो कलर जानना मेरे लिए आसान है, एक यूज करने से पहले उस सिंपल से पैकेट को हटा के हम इजिली यूज कर सकते हैं। शूज का पेयर कार्डबोर्ड के बॉक्स में आना, एज एंड व्हेन आई विल स्टार्ट वेयरिंग इट आई विल बी थ्रोइंग द बॉक्स, ठीक है, so that will be easy for me to use the things. In that way the large scale companies spent a lot on packaging, क्योंकि पैकेजिंग के बारे में I always quote a line, packaging in itself is a silent salesman. Will you agree? Packaging in itself or a good packaging in itself is a silent salesman that will influence you ना। अच्छी पैकिंग हुई होती है, जब दिवाली के दिनों में हम ये जाते हैं गिफ्ट शॉप्स के ऊपर अच्छी पैकिंग करके रखी होती है, that influence and that attracts us, ठीक है, और खुद ब खुद हम उसे खरीदने को तैयार हो जाते हैं। nobody is there to convince us. So that's why you should always spend a lot on good packaging. And once the goods are for kids, that should be packed in a stocking colors, because stocking colors always attract the kids. कभी ये लेस का कितना डार्क कलर है, जो मर्जी टेस्ट ले लो, ग्रीन कितना डार्क कलर है, येलो कितना डार्क है, रेड और ब्लू कितने डार्क डार्क कलर है, स्टॉकिंग कलर्स है, बिकॉज दैट अट्रैक्ट। और ढेरों परे सामान में आप लेस का पैकेट और कुरकुरे का पैकेट आसानी से ढूंढ लेते हो। दैट इज व्हाट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग व्हिच हेल्प्स टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट ऑफ योर्स विद योर कॉम्पिटिटर। आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर लेते हो। एनी अदर एग्जांपल फ्रॉम योर साइड ऑफ अ गुड पैकेजिंग व्हिच यू यूज इन डेली लाइफ? एनी अदर एग्जांपल? हाँ, any example? Toothpaste or any other example? Shampoo, yes. And shampoo में भी simple squeeze वाली बॉटल नहीं है, पंप बॉटल, that is very easy to use. Squeeze वाली बॉटल फिर हमें थोड़ा परेशान करती है शैम्पू को एक्सट्रैक्ट करने में, but once it is a pump bottle it is very easy for us to extract it, ठीक है। So that is a new innovation in packaging. आज से 5-7 साल पहले पंप बॉटल नहीं आया करती थी शैम्पू की, ना ही ऑयल के केस में भी पंप बॉटल है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स।
or anything else? Any other example? Even butter की पैकिंग देख लो आप, पहले बटर पेपर में है, बटर पेपर ही है, और उसके बाद कार्डबोर्ड की पैकिंग में है, और उसकी बेसिक नेचर को प्रिजर्व करने के अकॉर्डिंग की पैकिंग बनाई है। जूसेस के केस में, लिसन, जूसेस के केस में टेट्रा पैकिंग, ठीक है। कभी लीक हुआ है जूस? इतना सॉलिड उसका पैक रहता है, जब तक आप उस होल में स्ट्रॉ नहीं लगाते या सीजर से कट नहीं करते, इट इज नेवर बीइंग ओपन। सो दिस इज व्हाट टू प्रिजर्व द थिंग्स as per the characteristics of the goods. We should decide what should be the good packaging for our product. क्या बोला सर मैंने अभी तक? लोग आप पे हंसते हैं।